Welcome to Masala Buzz. We bring to you the latest happenings from the world of showbiz. Today's top stories are: how Deepika Padukone is going out of her way to bag a Salman Khan film. Veena Malik's alleged ex-boyfriend Prashant Singh claims she defrauded him and ran off. Is Katrina Kaif a rising star but a falling actor? Deepika Padukone may have debuted with Shah Rukh Khan, but it was Salman Khan who first spotted the long-legged beauty in her Literal and close-up ads and offered her a film way before Om Shanti Om. Back then she couldn't oblige, but obviously now she is hungry to be paired opposite the Super Khan. From what we hear, Deepika has been pushing her manager to bag Suraj Barjatia's Bade Bhaiya starring Salman. While there was talk of her being considered for the film, there was no confirmation of the same. But buzz is that Deepika has gone ahead to have several meetings with Suraj in a bid to show her eagerness to do the film. A Rajshri source confirms that talks are now in an advanced stage and that the dates are being worked out. And this doesn't seem to be much of a problem either. A source insists that Deepika has put aside bulk dates exclusively for Suraj's film. This time she doesn't want to miss out on the chance to star opposite Salman. More scandal comes Veena Malik's way. Veena married Asad Bashir Khan Khattak in Dubai on 25th December 2013. Just 4 days later, her India-based manager Prashant Singh registered a complaint of fraud against her. Prashant also claimed that he was her boyfriend and that the two were in a live-in relationship. He says Veena stayed with him for 2 years and then suddenly headed to Dubai and announced that she was marrying Asad. He alleges that he made Veena a partner in his entertainment company, Huge H Digital, and that she committed fraud by taking away the money they both earned through the venture. Prashant has been actively giving interviews talking about Veena's apparent betrayal. He has also reportedly claimed that Veena called his mom from Dubai and threatened her. If all this wasn't enough, there is more drama. Prashant has added that Veena threatened to press molestation and rape charges against him if he didn't withdraw his complaint against her. Meanwhile, Veena's been chilled out about the allegations from Prashant. She said he is an ex-employee of her. He used to work for her and many such rumors will surface now. People will talk about her past. At the moment, she is happy with her in-laws and her husband is her life. Katrina Kaif's latest and only release of 2013, Dhoom 3, is rewriting box office records. The movie has already minted 300 crore rupees worldwide and is still going strong at the ticket windows. That's not all. Industry experts say that with this, Ms. Kaif has reclaimed her position as the undisputed numero uno female actor in Bollywood. Now, Dhoom 3 may have earned earth-shattering collections, but we certainly don't think it's because of the leading lady who was on screen for hardly 15 minutes. Although we do agree she looked gorgeous in every frame, but that's about it. There is nothing beyond her pretty face and wooden expression in the film in which Aamir Khan shines so much brighter. So calling her the #1 heroine seems unfair, no? This especially when you watch an actor like Deepika Padukone who not only gets cash registers ringing but more importantly acts. As for Katrina, we are happy that she has decided not to settle down for at least 10 years because probably that's how long she will take to learn how to act. And a few more will add up if Katrina had to pull off a film like Goliyon Ki Ras Leela Ram Leela or even Cocktail, we think. Hi, I'm Shah Rukh Khan. You're watching Bollywood Masala and keep watching.
फिल्म इंडस्ट्री के लिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए लगातार बेहतरीन ब्लॉकबस्टर्स रहे हैं, गाने हों या वैरायटी हो या नया टैलेंट हो. आई थिंक इट्स गोना बी अ फैबुलस अवार्ड्स शो हियर. एक्चुअली क्या है, आपके कैमराज ने बड़ा कॉन्शियस कर दिया हमें, नहीं तो फिर आई वॉज जस्ट विथ माई को सिंगर, माई म्यूजिक डायरेक्टर. ही सेड आई एम ऑलवेज इन अ पेयर ऑफ जीन्स और अ टी शर्ट इन द स्टूडियोज़, बट हम बहुत या तो हम शोज़ कॉन्सर्ट्स में फुल ऑन रहते हैं और या तो रेड कार्पेट. सो मौके जो भी होते हैं उसमें आई एटलीस्ट डू माई बेस्ट. अवार्ड्स मोर देन एनीथिंग एल्स, अवार्ड्स इट्स अ परफेक्ट इवनिंग जहाँ पे हर कोई आके मिलता है, पूरी इंडस्ट्री साथ हो जाती है. और जब मौका हमें मिलता नहीं, क्योंकि पूरे साल everyone is in the race of producing films, directing films, deadlines, recording songs, making songs. It's really a lot of hard work, no sleep, no vacations. I think ये red carpet का एक vacation जैसा हो जाता है. It's a party in a way, and also a lot of nominations, lot of excitement, winning, losing तो थोड़ा दिल बैठ जाता है. So I think it's a lot of excitement. I think anytime Shah Rukh Khan is on the stage, he sets the stage on fire because उनकी energy कुछ अलग ही लगता है. There is no doubt he is the King Khan और he is an entertainer. By every cell of his body is as an entertainer. So his interaction is fantastic. And Ankit is going to be performing with him. I'm so excited. And it's his debut. So great. But मैं ये कहूँगी कि जो भी जिस पथ पे हम चले हैं और जो स्टैंड हमने लिया है उसका ऑलरेडी अच्छा और एक बहुत सुलझा हुआ सोल्यूशन निकल रहा है. एंड इट इज़ गुड फॉर द एंटायर म्यूज़िक फ्रेटर्निटी. और इतनी यूनिटी हमारी पूरी इंडस्ट्री में आज तक कोई भी इंडस्ट्री में इतनी नहीं दिखी होगी जो हमारी. कुछ तो होंगे ना जो साथ ना हो, पर फिर भी अपने विश्वास पर आप अटल रहिए, अपने स्टैंड पर अटल रहिए. जो जितने भी 2-3 भी लोग होंगे ना वो भी बहुत है. सो आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी मेकिंग अ लॉट ऑफ. है ऑफ कोर्स. दिस इज अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ. मैं चाहूँगी कि सारे अवार्ड्स इसमें. माय गॉड, अभी कमांडो की और सिलसिला शुरू ही हुआ है. ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, मुझे लगता है काफ़ी देर तक चलेगा. आज मैं सब जो परफॉर्म करने वाले उनको सपोर्ट करने आया हूँ, वो परफॉर्मेंस देखूंगा और बहुत मज़े उठाऊंगा. शाहरुख सर और अभिषेक जब भी परफॉर्म करते हैं अच्छा ही होता है. एंड I'm a big fan of Shahrukh, so I'll be very excited watching. अभी तक तो उनके साथ काम नहीं किया है, मगर बहुत इच्छा है उनके साथ काम करने की और मैं उनसे आज मिलने वाला हूँ और देखते हैं उसके बाद क्या. इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ऑन स्क्रीन हीरो नहीं है, वो रियल हीरो भी है. जो आदमी अपना काम नहीं छोड़ता है और लगने के बावजूद आता है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक दैट. इंसान, मुझे लगता है कि हर इंसान को बदलते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो. कॉन्फिडेंस से आप जो भी करें वो अगर आप अच्छी तरह से करें तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू. एवरीबॉडी शुड चेंज. Really great. I think everybody says films need good stories, and I think writers need more people reading and watching their stories. So it's really nice. अभी इधर इतने पूरे फिल्मी हुए नहीं है. अभी फिल्म अवार्ड फंक्शन में बुलाना शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो अब मन कर रहा है कि शायद कुछ और करें. आई थिंक एज अ नेक्स्ट चैलेंज शायद कभी डायरेक्शन की तरफ करूं, पर अभी तक मैं काफ़ी इस बारे में सोच रहा हूँ. पक्का फैसला नहीं करा. किताबें तो काफ़ी पढ़ते हैं, और ये जो मेरा छोटा वाला एक है ईशान, वो उसका अगर आपने कायपोचे देखी हो तो उसमें एक उसका छोटा सा कैमियो भी था एंड में. और बाकी तो अभी पढ़ रहे हैं. अभी तो फिल्मों में सिर्फ टाइम पास के लिए देखता है. है तो छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है और शो बस
एक ही उसका थियोरी एक ही है कि हर आदमी किसी एक और आदमी की मदद करे। सो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो एक आम आदमी की ज़िंदगी उस शो में जीने वाले हैं। सो आई थॉट इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और जिस तरह से मेरी तरफ से अगर जो कुछ भी हो पाया तो हम लोगों ने सब ने पूरी टीम ने मिल के ये शो किया है इस हिसाब से कि एक अच्छा काम हो रहा है किसी आम आदमी के लिए। बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, टीवी स्टार्स हैं, कुछ खिलाड़ी भी हैं। सो लवली सिंगर्स हैं, हीर है, सलमान है, मिका है, हरभजन, राम कपूर एंड करण, रणबीर जैसे आपने कहा, और कौन, आई थिंक वीव कवर्ड एवरीबडी। एक्चुअली मेरे देखे बगैर वो शो ही नहीं बन सकता, सो ऑफ कोर्स मेरे सामने ही हुआ। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक इट्स अ सुपर्ब शो। Yeah, well, I mean, if I get an award, it would be great. But I'm not honestly expecting to win because I don't feel this is our year to win. This was our year to be nominated, which is a good feeling. मैं सच बताऊं आपको, मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी अगली फिल्म कौन सी होगी। मुझे अभी तक मतलब ढंग का आइडिया नहीं है। फिल्म की राइटिंग अभी शुरू हुई है, तो देखते हैं, you know what happens. Like I said last time also, my sister keeps saying, Didi, is your speech ready? And I've always said, don't anticipate or don't expect because you never know. It's been a great year at the movies for everyone. I think there have been some really nice performances, and until that award is in my hand, I never have a speech ready. I've never planned a speech. See, they're doing all these stories now of me saying that I dress like Hollywood actresses and also now forget it. Now I'm not saying anything. No. So I've always been styled by Anaita Shroff. You all know that. And so she's put the look together. We've liked the gown. She had this idea of doing this whole Mang Tika look, keeping it a little ethnic and ethereal. So hopefully it works. Well, I hope so too. I've been nominated for all 3 of my films, 3 out of 4 films. So obviously I hope that I'll win. I think everyone who's nominated somewhere deep down inside obviously hopes that they will win. But like I was mentioning to her, it's not something that you plan. It's something that just, you know, if I win, then let's see. I'm not surprised. In fact, the day the accident happened, he was back to set. He went to the hospital, got treated and came back. So I'm not surprised that he's performing today. Like I said, I'm looking forward to Ranveer's performance, I'm looking forward to Akshay's performance, and I'm looking forward to meeting Shah Rukh. I performed to, what did I perform to? I performed to Khuda Jaane and Race 2 and Nagada Sang Dhol from Ramlila. I've been associated with one of these brands for the last 6 years now, and so yeah, I'm going to be spending the whole day with them. You I'm not talking to because I asked you and you said no. So I'm very disappointed. Thank you. Bye. मज़ा आ रहा है। दोनों फिल्मों के लिए नॉमिनेटेड हूँ मैं। ग्रैंड मस्ती के लिए मुझे बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए दिया है नॉमिनेशन मेरे दोस्त रितेश के साथ में, और बेस्ट नेगेटिव के लिए क्रिश के लिए, सो फिंगर्स क्रॉस्ड है। हाँ, सो आई एम रियली एक्साइटेड हियर। रितेश and Abhishek did a fabulous job last year, so I think they'll do a really fun job this year too. It was very funny and very lively last year, so I'm pretty sure they'll do a great job this year too. Shah Rukh is a fighter like that. He's amazing. You know, he doesn't let small injuries come in the way. He's somebody who's extremely inspired and extremely motivating also. So I expect nothing less than that. हम तो हर रोज़ को वैलेंटाइंस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। प्यार ज़्यादा है इसीलिए। The best. no, I think Ritesh and Abhishek have this great chemistry. I think it's better than me and Ritesh also at times. But I think that's what shows, and I think that's why the award show will be exciting. It's my first award show of the year, in fact, that I'm attending, and it honestly has a lot to do with Ritesh and Abhishek. Marathi films hai kya? They're nominated? Oh yeah, definitely. I hope. I mean, I think we won the best film at the Screen Awards, so hoping we're at the Z Awards as well. I have no idea. Yeah, I'm sure everyone wants to try out something new, and I think as an actor, you need to keep discovering yourself.
So yeah, a lot of things. Just by giving, you know, people happiness, that is also help. So, आज सुबह actually I was visiting one orphanage place with children that stays on the beach actually. So it was very nice helping them to learn English, mathematics and all. So yeah. I'm again going with no expectation, just in case किसी और को मिल गया. I don't want to feel bad, so I'm just going to go with very little expectation. अभी मैंने अपनी साउथ फिल्म खत्म की है जो यशराज के साथ है. उनकी पहली प्रोडक्शन है डाउन साउथ, आहा कल्याणम. तो वो 21 Feb को रिलीज हो रही है. एंड I'm flying back after this to Chennai and Hyderabad to promote it. I mean फिलहाल सिर्फ ये आहा कल्याणम करी है, उसके बाद back in Bollywood again. I hope so. I hope people accept it and, you know, I mean, they go watch it and give it as much love as they give to Band Baja Bharat, because honestly, we've put in all hard work and efforts in it. You know, it's all pure hard work. So. मैं किसी भी अवार्ड की अपेक्षा नहीं करती, क्योंकि नॉमिनेट होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. क्योंकि आपको ऐसे रोल्स कितने मिलते हैं जहाँ पे आप नॉमिनेट हो सको, और अगर आपको यही ऑनर मिला है वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है. आई थिंक इफ़ आई गेट द अवार्ड इज़ अ बिग इफ, सो लेट्स वेट एंड सी. एज सून एज सम प्रोड्यूसर सेज दैट वी शुड एक्ट टुगेदर, I would love to act with her, really. I have a wonderful time doing that. We did Idhar Udhar years back and hope to do it soon again. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी फिल्म की स्टारकास्ट या तो अवार्ड ले रही है या होस्ट कर रही है, और आज मुझे भी एक अवार्ड दिया जा रहा है. वो स्पेशल अवार्ड उन्होंने इंस्टीट्यूट किया है, स्त्री सम्मान अवार्ड, जो विमेन अचीवर्स इन सिनेमा को दे रहे हैं. तो आई थिंक इस साल शबाना जी और मुझे पहला अवार्ड दे रहे हैं वो. आई थिंक एक एटमॉस्फेयर ही पॉजिटिव है हमारे सेट पे. बहुत सारे एक्टर्स हैं और नॉर्मली बहुत सारे एक्टर्स होते हैं तो ईगो प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक्टर बोला है आप बीच में खड़े हो, आप बीच में खड़े हो. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एटमॉस्फेयर. आई एम enjoying making this movie and I think everyone who comes on the set is enjoying themselves. तो होपफुली वो एन्जॉयमेंट ऑडियंस को भी नज़र आएगी. वेल वो देखेंगे क्या होता है शाम में. मतलब इतना आगे सोचने की ज़रूरत है नहीं. वैसे मैं चाहूँगा दिस गो इनसाइड. रितेश अभिषेक होस्ट कर रहे हैं. काफ़ी मज़ेदार एक शाम होने वाली है. तो और सारे हमारे बाकी भी दोस्त हैं अंदर. भाग मिल्खा भाग के डायरेक्टर भी हैं, बाकी क्रू मेंबर्स भी हैं. तो उनके साथ बैठ के एक अच्छी शाम होगी. हाँ सच है, मतलब इन चीज़ों के बारे में मतलब इंसान सोचता नहीं है जब फिल्म बना रहा है. तो यही बस एक काम रहता है कि जो फिल्म बन रही है और जो काम हो रहा है वो अच्छा हो. बहुत खुशी है कि लोगों को फिल्म पसंद आई है, काम पसंद आया है, और ये जो भी अवार्ड्स या बॉक्स ऑफिस पे जो भी सक्सेस हुआ है फिल्म को, वी आर वेरी ग्रेटफुल. वो देखा जाएगा. इस वक्त इस साल मैं दो फिल्म कर रहा हूँ, तो उसके बाद ही सोचूंगा. सर उनका शेड्यूल तो मैं नहीं रखता, वो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा अगर वो आए तो. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. वो बहुत ही मतलब अच्छी एक्ट्रेस तो है ही, तो उनके साथ काम करने में एक इंस्पिरेशन हमेशा मिलती है हर सीन में. सो इट्स वेरी गुड. तो आई थिंक जी अवार्ड्स हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग अवार्ड शो होता है. जब मैंने पहली बार होस्ट किया था तो मैंने जी अवार्ड्स के लिए किया था, एंड आई थिंक इट विल बी अ रियली रियली अमेजिंग शो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फन नाइट. मुझे भी विस्तार से पता नहीं, शायद जब अंदर जाके वो अनाउंस करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन उड़ती उड़ती खबर मैंने मुझे तो नहीं लगता. मुझे लगता अभी 1 ही साल हुआ है जब से मैंने अपना म्यूज़िक करना शुरू किया है, एंड वही इंटरनेशनल काम है मेरा. एंड आई थिंक अभी बहुत लंबी जर्नी है मेरी, एंड मैं बट ऐसे अवार्ड्स मिलना बहुत इंकरेजिंग भी होता है. आई एम वेयरिंग अ साड़ी बाय जेड. Actually, I was really in the mood to wear a saree. मैंने बड़े दिनों से साड़ी नहीं पहनी थी, and it's my favorite outfit, so I decided to wear one. Well, I always knew that she would, because I think she's a phenomenal actor. हमारी family में it runs. But I'm very very proud of. उम्मीदें मैं कोशिश करती हूँ ना रखने की फिल्मों से, लेकिन गुंडे इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म. हमने बहुत काम किया इसमें, कोल के खानों में, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्मी में शूटिंग की है, एंड इट्स लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल. इट्स अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ. और ये वैलेंटाइंस डे के दिन आई थिंक एक प्यार की फिल्म देखना बहुत अच्छा होगा. आई थिंक दुबई मेरे लिए लकी है. जब भी मेरी फिल्मों की प्रीमियर्स रहा हूँ, द फिल्म्स हैव रियली डन वेल. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रीमियरिंग द फिल्म इन दुबई.
मैं पहली बार गई थी राष्ट्रपति भवन एंड स्पेशली इट वाज एन इवनिंग जहाँ पे आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड. आई थिंक वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी थे एंड a lot of other dignitaries and इतने ऑगस्ट कंपनी में रहना बहुत अच्छा लगा. वहाँ पे सोनिया जी थी, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ पे काफ़ी अदर मिनिस्टर्स भी थे, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ शर्मिला जी थी और वहाँ पे आई थिंक ऑफ कोर्स जर्मन कंटिंजेंट तो था ही और बहुत अच्छा लगा. आई थिंक वहाँ पे हमारी फिल्में बहुत चलती हैं, इसीलिए आई वाज स्पेशली रिक्वेस्टेड एंड आई फेल्ट रियली फ्लैटर्ड. आपने उल्टा सुना है. मैंने हमेशा कहा है मैं बहुत एपॉलिटिकल हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर जानती नहीं. I don't know what will happen, but वैसे मैं अपने आप को बहुत डिप्लोमेटिक समझती हूँ एंड वेरी वेरी एपिक. बहुत ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस होते हैं हमेशा जी अवार्ड के एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग हियर. कभी भी स्टैंडर्ड कभी सेकंड बेस्ट नहीं होता. सो इट बी ह्यूज. मुंबई की सेफ्टी की बात करना अब आई डोंट थिंक मेक सेंस. आई थिंक हमें देश की सेफ्टी की बात करना ज़्यादा सोचना चाहिए. हर शहर को एक मिस बांट के ये सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं. अभी ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि जो लॉज इम्प्लीमेंट करे गए हैं उनका जो लॉज बनाए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और ना सिर्फ मुंबई में बट पूरे देश में. मेरी जो अगली फिल्म है उसका नाम टोटल स्यापा है. बाद में इफेक्ट डाल दीजिएगा तालियों का. टोटल स्यापा जो है वो एक स्यापा हमारी ज़िंदगी में जो मचा हुआ है जिसका आप सब लोगों को पता है. तो स्यापे की वजह से स्यापा होता है केओस. पंजाबी का वर्ड है क्योंकि स्यापा पे गया, क्या वक्त पड़ गया. तो अब वो लड़की जो है वो लड़के को लेके जाती है अपने घर वालों से मिलवाने, माँ बाप से मिलवाने. तो माँ कहती है कि ये पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी से शादी कैसे कर सकते हो. तो कहती है इसमें क्या है. तो ये इस पे फिर आगे बहस होती है और फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, बड़े इंसिडेंट्स होते हैं घर के अंदर. एक ही दिन के अंदर एक ही दिन की कहानी है और बहुत मज़े की एक हिलेरियस स्टोरी है ऑफ दैट वन डे जब ये लड़का अमन आशा के घर जाता है उससे बात करता. तो देखते हैं कि अमन की आशा होती है कि नहीं होती. Masala Buzz. We bring to you the latest happenings from the world of showbiz. Today's top stories are: Shahid Kapoor has gone on a holiday abroad. Is R. Madhavan playing Priyanka Chopra's coach? In Maricom, Subhash Ghai has been keeping information under wraps. Every time Shahid Kapoor goes on vacation, we see photos of him frolicking with a bevy of beauties. After the success of R. Rajkumar, Prabhu Deva's last film co-starring Sonakshi Sinha, Shahid has taken off again to parts unknown somewhere outside India. And he has big plans for next year. He teases when we ask, but he refuses to say more. Any announcement can wait until he is back in early January, he insists. For now, Sasha is riding high on the feeling of his last film being so well received by the audiences, even though the critics were not super happy with it. He told a reporter that people were laughing, whistling and dancing on their seats. It came as a pleasant surprise, Shahid says, because he never thought that this new space would work out so well. The audience loved it. They enjoyed this new style of dance and action. But it is what he said next that tells us that he has mega ideas for himself and his acting career. The success of R. Rajkumar has encouraged him to experiment more. कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अब यार बगैर कपड़ों के तुम्हारे कबर्ड में बैठकर मैं IPL तो नहीं दिख रहा हूँ ना? She's so hot. R. Madhavan will be playing a female boxer's coach in an upcoming film. Now, before you jump to any conclusion, let us make it clear that Maddie will not be saying Priyanka Chopra's coach in Sanjay Leela Bhansali's biopic, directed by Umang Kumar. Instead, the Three Idiots actor will be seen as the coach of a real-life boxer in a different film, which will mark the debut of Sudha Kangura. For those of you who do not know Kangura, she was one
once an assistant to Mani Ratnam. This film will be produced by Ashwini Yadi, and we hear that Madhavan is preparing for his character for almost a year now in LA. Maddie will shift from his romantic and zombie avatar and will don a rugged look in this movie. That's not all. The film, unlike Priyanka's, will have a real boxer putting the gloves on screen. Interestingly, this film has a romantic angle woven into the sports story, so it will be certainly interesting to see whose film will fare better. Are Madhavan's or Priyanka Chopra's? Looks like Priyanka's Mary Kom has a competition. कलकत्ता की सबसे खूबसूरत कैबरे डांसर, विक्रम और बाला के काले जिस्मों का गुलाबी दिल। Subhash Ghai handpicked Mishti for playing the lead in Kanchi after auditioning over 400 girls. But what worries us is that he is not ready to disclose anything about his discovery. Ghai has almost finished shooting for his next venture, Kanchi, and this time he is keeping his heroine strictly out of the media's prying eyes. We all know how much he fusses over his leading ladies. For Kanchi too, he zeroed in on Mishti after a lot of auditioning. We are bound to be curious about her, but the showman has decided to dampen our spirits somehow. Now, according to the sources out there, Ghai's obsession with the letter M has resurfaced. He is said to be renaming his past heroines and giving them the names that start with M. Although he maintains that he has only changed Mahima Chaudhary's name, we think there is more to the secret behind Mishti. Maybe her name. Who knows? Ghai did not like Mishti's real name, chose to change it, and is now worried about his image as the name changer. For now, we just have a picture from the sets of Kanchi, which has been creating a buzz on various social media platforms because of Mishti's pretty face, especially her eyes. Hi, this is Dino Morea. You're watching me on Bollywood Masala. Keep watching. मज़ा तो बहुत आया, लेकिन कोई लिसनर से हमने ऐसे बात नहीं की है लाइव, लेकिन इट्स ऑलवेज ग्रेट, इट्स वंडरफुल टू टॉक अबाउट गुलाब गैंग और उसके बारे में जब बात करते तो बहुत मज़ा आता है। मैं तो आरजेएस का फ़ैन हूँ, तो मुझे आरजेएस से मिलकर बहुत मज़ा आता है। जब भी आरजेएस से मिलता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं आरजेएस का फ़ैन हूँ क्योंकि वो एक कमरे में बैठ के इतनी सारी लाइव इतनी एनर्जी क्रिएट करते हैं और सो मेनी पीपल अक्रॉस द कंट्री, जो अपने आप में बहुत अच्छा काम है। तो बहुत खुशी है कि वो भी गुलाब गैंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी सी एनर्जी बाहर जाएगी और बहुत सारे लोगों को लेके वापस आएगी थिएटर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जूही जी थी, परसों तक हमारे साथ थी, उनके ये डेट आज उनको कुछ प्रॉब्लम था, आज वो उपलब्ध नहीं थी, कल फिर होंगी, फिर उसके अगले दिन शायद नहीं होंगे, फिर होंगी, ऐसा कुछ, फिर कभी ये नहीं होंगी। इतनी एनाटॉमी में जाके देखते नहीं हैं जो फिल्म बनाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि फिल्म के लिए कौन लोग अच्छे हैं, कौन एक्टर्स अच्छे हैं, जिनकी आपस में एज एक्टर्स एनर्जी कैसी होगी, वो टॉप प्रायोरिटी होती है। बाकी ये पेरिफेरल्स हैं जो मदद भी करते हैं, कभी नुकसान भी करते हैं। इस केस में मदद ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर वाकई ऐसा कुछ होता कि दोनों के बीच में इक्वेशन या एनर्जी अच्छी नहीं होती तो शायद नुकसान होता है इस बात का, लेकिन भगवान की दया से ऐसा नहीं था। दोनों हाई स्पीड में नहीं चली, दोनों के बीच में बिजली नहीं कड़की, तो अच्छे से काम हुआ, एक अच्छी सी फिल्म बन गई और हम लोग सब मिलकर पिक्चर को लोगों तक ले जाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से कर ही रही होगी। मतलब फिल्म के बारे में जितनी तरह से बातें की जा सकें उतना अच्छा है, और ये फिर एक अलग वजह बनती है उसके बारे में बात करनी। मैं और आप 3 सवाल जवाब कर चुके हैं इस मुतालिक, तो अच्छी बात है। मुझे लगता है आप कितना भी प्रमोट करो ना करो, द मूवी हैज़ टू बी गुड टू रन, फाइनली इट बॉयज डाउन टू दैट। लेकिन आजकल इतनी सारी चीज़ें हो रही है एक दिन में, चाहे वो डिजिटल पे हो, चाहे हर मीडिया टीवी पे हो, अदरवाइज इवेंट्स हो, तो इतना नॉइज़ होता है। उस नॉइज़ में आपको अपनी आवाज़ थोड़ी ऊँची करके कहना पड़ता है ऑडियंस को, हमारी भी फिल्म आ रही है, आप प्लीज़ देख लीजिए। तो आई थिंक प्रमोशन इज़ बेसिकली दैट, मेकिंग पीपल अवेयर कि आपकी फिल्म आ रही है, यूर सीन एवरीवेयर। तो लोग बेचारे क्या हो रहा था वहाँ, माधुरी जी क्यों थी, वो बिकॉज ऑफ गुलाब गैंग, तो उनको पता चलता है गुलाब गैंग की वजह से। तो उस हिसाब से जस्ट मेक देम अवेयर। फाइनली फिल्म में वो दम होना चाहिए जो चले। इसमें एक्शन है और
मतलब कड़क एक्शन है, बिल्कुल लाइक रियल एक्शन। हाँ बिल्कुल, और इसमें कोई स्टंट डबल नहीं है। मज़ा आया करते वक्त और आई होप पीपल एंजॉय इट। हाँ, पहली बार मैंने ऐसा एक्शन किया है और लेकिन कहीं भी ऐसे इट्स नॉट ठूसा हुआ नहीं कि ये डालना है। इट कम्स वेरी नेचुरली थ्रू द फिल्म, चाहे वो गाना हो चाहे एक्शन हो, इट्स ऑल पार्ट ऑफ व्हाट रज्जू इज। डांस करके कितना इंजर हो जाते हैं तो फाइट में क्या है, तो यहाँ वहाँ कहीं लगती है, इट डजंट मैटर, बट आई थिंक आई जस्ट एंजॉय डूइंग इट। वेल, आई हैव नथिंग टू से, माय प्रोड्यूसर कैन से समथिंग। नाराज हैं? पता नहीं मुझे। एक चिट्ठी आई थी मेरे पास क्या पूछने के लिए कि क्या आपने ये फिल्म मेरे जीवन को बनाई, तो मैंने उनको बता दिया कि नहीं बनाई। मतलब नाराज होने की कोई बात ही नहीं उसको। स्कैर्ड तो नहीं, मैं स्कैर्ड नहीं होती हूँ। हमेशा आप जो करने जा रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो सेफ्टी है वो बराबर है, और वंस यू डू दैट थोड़े से गट्स होने चाहिए आपको करने के लिए, तो वो है प्लेंटी। तो कर लिया एक्शन, और हाँ एक दो बार ऐसे होता है कभी कभी कि एक आध दूसरा, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल फाइटिंग एट द सेम टाइम, तो कहीं थोड़ा सा डंडा लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, बट इट्स पार्ट ऑफ द एक्शन सेट, पार्ट ऑफ बीइंग रज्जू एक्चुअली। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस कंटेम्परेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट राइवल्स एज एवरीबडी इज गोइंग ऑन। लेकिन हाँ बहुत सारे सीन्स हैं ऐसे टक्कर के सीन्स हैं वेयर वी आर लाइक गिविंग एक्सचेंजेस टू ईच अदर, और बड़े करारे सीन्स हैं, इट्स लाइक गिव एंड टेक काइंड ऑफ सीक्वेंसेस व्हिच आर लाइक इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं। नहीं ऐसा, इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ प्रमोशंस यू वांट टू डू। गुलाब गैंग तो सब देख ही रहे, ट्रेलर भी आ गया है, लोगों ने देख भी लिया। हाँ, प्रोड्यूसर पहन रहे हैं, बताइए। हाँ प्रोड्यूसर पहन रहे हैं, तो नेसेसरी नहीं है कि आपको उसी कैरेक्टर में आना है, क्योंकि दिस इज नॉट रज्जू है, वो फिल्म में है, वो एक अलग किरदार है, लेकिन मैं माधुरी दीक्षित, वी आर टॉकिंग अबाउट माई द पर्सनैलिटी आई प्ले। आई होप ये पहुंचाएगी, क्योंकि इसमें मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है। इट्स अ कम्प्लीटली एंटरटेनिंग फिल्म, इट्स लाइक अ कमर्शियल फिल्म, उसमें सब कुछ है, लेकिन एक मैसेज भी है जो लोग साथ लेके जाएंगे। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। हाँ राइट। उनका एक गाना बहुत मुझे पसंद है, गज़ल, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। God is God. Thank you. हाँ जी, हम रेडी हैं लोगों को हंसाने के लिए, फंसाने के लिए। अभी पता चलेगा फंसे कि नहीं फंसे। कल अब कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही घंटे रह गए एक्चुअली। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी नर्वसनेस है, क्योंकि एक किस्म की बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, एक अलग किस्म की कॉमेडी भी है, अलग किस्म का कंटेंट भी है। तो या होपफुली लेट्स सी, ईगरली वेटिंग नाउ फॉर द रिस्पांस। नो, हम लोग तो रेडी हैं। आई होप कि लोग जाएं, अगर उनको कुछ प्रोमोस पसंद आए, गाने पसंद आए, दे शुड गो, दे शुड एंजॉय द फिल्म। हमने बहुत मेहनत की है, सो आई होप यू लाइक द फिल्म। हाँ, नॉट ओनली मेरी बहन का, ऐसे बहुत लोग हैं मेरी फैमिली से, मेरे फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी सारे फिल्में देखें, एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस से पहले आई थिंक हमारी फैमिली देख लेती है, तो अगर वो बोलती है कि अच्छी पिक्चर है, तो जैसे कि आपने कहा, हाफ द बैटल इज़ वन, बट ऑफ कोर्स ऑडियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जाएंगे अपनी फैमिलीज के साथ, तो आई होप दे ऑल्सो लाइक इट। आई थिंक जो दो कैरेक्टर्स हैं हमारी पिक्चर में, जो एकदम टिपिकल हीरो या हीरोइन टाइप कैरेक्टर्स नहीं है, एकदम किस्म के कि प्यार हमेशा एक करेक्ट आदमी और करेक्ट लड़की के बीच में नहीं होता है। प्यार कभी कभी दो नॉट सो करेक्ट और थोड़े टेढ़े लोगों के बारे में, या थोड़े रियल लोगों के बारे में, जिनमें काफ़ी खामियां होती हैं, उनके बीच में भी हो सकता है। तो ये आई थिंक हमारी USP है, जो दो कैरेक्टर और दुनिया बनाई है विनील मैथ्यू ने, कि थोड़े टेढ़े लोग, थोड़े रियल लोग, थोड़े हर किसी में थोड़ी खामियां होती है, हर कोई थोड़ा टेढ़ा होता है, हर कोई थोड़ा अजीब होता है। तो कैसे दो अजीब लोगों के बीच में प्यार होता है, आई थिंक वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा, थोड़ा नया लगेगा। ये पिक्चर वैलेंटाइन डे स्पेशल होगी ऑफकोर्स। आई थिंक अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, किसी के साथ डेट पे जाना चाहते हैं, पिक्चर करेक्ट है, इसमें काफ़ी रोमांस है, उतना क्यूट मोमेंट्स हमारे पास काफ़ी हैं। लव स्टोरी इज ऑलवेज गुड फॉर अ रोमांटिक, फॉर अ वैलेंटाइंस डे, एंड हमारी में काफ़ी लव है और काफ़ी रोमांस है। नहीं, सेट काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी यंग था, काफ़ी कूल सेट था, काफ़ी बेसिक सेट था। आई थिंक हमारे स्पेशली मेरे लिए SOTY सेट से बहुत अलग था। पता चला कि कितने हम लोग वहाँ पे बिगड़े गए थे, कितने स्पॉइल थे, बट हाँ काफ़ी मज़ा आया पिक्चर शूट करते हुए। काफ़ी और चीज़ें करी इस पिक्चर में हमने, काफ़ी और सिचुएशन में गए हम लोग,
लव सीट जैसा, या तो गाड़ी में ड्राइविंग करते करते हिचकी के बारे में इनसे सुनना, या एक मीटिंग है मेरी जो मेरी एक स्टीम रूम में मीटिंग होती है, तो काफ़ी और सिचुएशन आप देखेंगे पिक्चर में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली शो पे इसलिए गए हैं ताकि हम दिखा पाएँ कि कोई दो तलवारें नहीं है। वो मेरी दोस्त है, हम दोनों तब से दोस्त हैं जब SOTY रिलीज़ भी नहीं हुई थी, और अभी तक टचवुड कुछ बदला नहीं है। तो उसने जेन्युइनली एज ए फ्रेंड बोला था कि आई थिंक परिणीति को अपनी ड्रेसिंग स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग उस काउच पे इसलिए गए ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बस ये कहा था कि जब उन्होंने वो कैरेक्टर लिखा था तो उन्होंने एनविजन किया था कि मैं या मेरी जैसी कोई एक्ट्रेस उसके लिए करे, क्योंकि उनको शायद कॉन्फिडेंस था मेरे में, लेकिन ये मेरे लिए नहीं लिखी गई है, मेरे से 3 साल पहले से ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। बट आई एम ग्लैड कि विनल सर को इतना कॉन्फिडेंस था मुझ में और सिड में, और उन्होंने हम दोनों को इस पिक्चर में लिया। काम तो हर पिक्चर में होता है, 3 बार तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमें उन्हें जगह। हम एक्चुअली रिसेंटली हमारे पास टाइम नहीं था डबिंग करने का, तो वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट आदमी है विनल मैथ्यू, काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी है, आई थिंक काफ़ी टैलेंटेड है। आप देखेंगे कि उन्होंने जिस तरह अपने ऐड फिल्म बनाए उसी तरह एक पिक्चर बनाई है, काफ़ी सॉफ्ट मोमेंट है। पर हाँ, काम हमेशा होता है, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने ज़रूरी हमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम करें। दोनों को पिक्चर पसंद है, एक्चुअली दोनों को थोड़ा उनका कॉम्प्लीमेंट लेना तो अलग बात है, बिकॉज उन्होंने ही पिक्चर प्रोड्यूस करी है, उनको ऑब्वियसली पिक्चर पसंद थी, तभी उन्होंने बनाने के लिए बोला, और उनको कंटेंट पहले से पता था कि क्या है। पर दोनों काफ़ी सरप्राइज थे कि किस किस्म की पिक्चर निकली है। आई थिंक जो एक दुनिया बनाई है विनल मैथ्यू ने, जो एक कॉमेडी करी है विनल मैथ्यू ने, जो एक किस्म का एक्सपेक्टेड नहीं था कि शायद इस चीज़ में लोगों को हंसी आ सकती है, उन्होंने काफ़ी नई किस्म की सिचुएशन बनाए हैं, तो वो दोनों सरप्राइज थे, अनुराग जी भी और करण जी भी। तो अच्छी बात होती है जब दो ऐसे इंटरेस्टिंग और बिग फिल्म मेकर्स आपके काम को पसंद करते हैं और तारीफ करते हैं, तो हम दोनों खुश हैं। और जैसे कि हमने बताया, बहुत हंस खेल में हमने पिक्चर बनाई। का कैरेक्टर प्ले कर जो अगर आप पल झपकेंगे तो गायब हो जाएंगे। नहीं, उन्होंने एक छोटा सा कैमियो किया है, एंड इनफैक्ट विकास बहल, मधु मंटेना, ये सब प्रोड्यूसर्स हैं, उन सबको हम लोग जो भी सेट होता है ना, हम बोलते थे आगे एक सीन करो, तो सिड ने ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ एक्टिंग की है पिक्चर में, बट इट वाज जस्ट आउट ऑफ फन एंड प्ले, एंड वी वर स्वीट इनफ टू से यस। बजट प्रॉब्लम थी और बाकी एक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पाए हम लोग, तो हमने कहा कि आप फ्री में काम करोगे, लेकिन जितने लोग सबको यूज कर लिए, ऐसे हमने कम बजट में पिक्चर बनाई। हाँ जी, पहली पिक्चर से काफ़ी अलग था, बिकॉज सडनली एक रोल रिवर्स हो गए। मैं एक पिक्चर पुराना था और डायरेक्टर नया था डायरेक्टर, पर वो कहना उनके लिए सही नहीं है, बिकॉज उन्होंने विनल मैथ्यू ने काफ़ी एड फिल्म्स करी, तो टेक्निकली बहुत साउंड है, पर ऑफकोर्स एक उन्हें पूरी पिक्चर में बनाई, तो आई थिंक मेरे पे ज़्यादा एक किस्म का वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एज एन एक्टर, बिकॉज नाउ आपको पता होना चाहिए कि आप पिक्चर में क्या कर रहे हैं, आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं एज एन एक्टर, बिकॉज आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे लिए अच्छा था, आई थिंक मेरे को ज़्यादा पंप अप कर दिया, इसके लिए मैं ज़्यादा अवेयर हो गया स्क्रिप्ट के बारे में, पिक्चर के बारे में, तो लेट्स सी, होपफुली वो सब मुझे जितनी भी अकल है उतनी मैंने यूज़ करी है पिक्चर में, और कुछ दिखना चाहिए आपको एज अ कैरेक्टर। Today's context, I think if a girl smiles at you, it's not that she's fallen for you. I think it's smiling is just a positive thing. It's a very welcoming thing. It's like she wants you to, I mean, she likes you. Or maybe she wants to talk to you more. She's interested. Oh, she's interested, hopefully. So hopefully it's apt for some of the girls. Yeah, definitely. Like you said, it's not just कि जैसे हम कहते थे हंसी तो बसी सिर्फ हंसने से फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है। I think it's the beginning. I think it just means that there could be a possible friendship, possible relationship, that she's not completely against you. So I think it's just the starting point, not the ending point. Yeah. I must admit that I love performing to the mic. I think these guys have a crazy way. They're so full of energy that you can sense it in their voices. So it always takes me back to, you're right, to Lage Raho Munna Bhai, when
I realized that, you know, of course it was a film and you could see my face, but the voice needed to have that musty, that energy, that brightness. So whenever, I think subconsciously I always switch that thing on when I come to a radio station, and I love coming to Radio Mirchi. They make it so special always. They welcome you with a bang, and invariably I come here in the mornings and I'm a bit sleepy, and then suddenly I'm all awake and I'm saying, okay. नहीं उस तरह का नहीं है. It's actually शादी के side effects is more it's more from the male perspective or male point of view of शादी. So I think it's his imagination of how life would be if he was still single. So there's no special song as such. मेरे तो सब उन्हीं के साथ हैं. I think I'm very grateful for the kind of work I've done. जिस तरह की फिल्मों से मैं जुड़ी हूँ, उसी वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ, and I feel very grateful and blessed for the opportunities I've had. Because the Padma Shri is an unbelievable honor. Bobby Jasus was great fun. We've completed the film in 51 days flat in Hyderabad, and Dia Mirza and Sahil Sangha, who are the producers of the film, created an environment where everyone felt like they were contributing. So they felt a certain ownership towards the film, and we've all tried to do our best. Samar Sheikh is a new director, but I must say that he had us all working very hard. But I will also say that he had us working happily hard. Yeah, it's a female detective film, but it's not just a detective film, it's a human story. And I'm not thinking of how different we are going to be, because, you know, I don't think of the other films when I'm sure each film will be unique. I'm looking forward to what they do, but most importantly, I'm looking forward to how people receive Bobby Jasus. नहीं बिल्कुल नहीं. और उसके लिए बहुत वक्त है अभिषेक. मैं कुछ कहूँगी तो ये लोग अब जाके कहेंगे कि तैयार हो जाओ, तैनात रहो. ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल नहीं है. And I don't think I want Siddharth to do that ever. Nice question. No, I must say that Farhan doesn't have a wicked sense of humor. He has a crackling sense of humor, and he's got great presence of mind. So he can make a joke about anything and with a straight face, and I love that kind of an atmosphere at work. And I think he's extremely intelligent, and his sense of humor also stems from that. So I didn't have to keep up. I just had to stop laughing when we were shooting, which was difficult. You got it? No, that was just, you know, on Coffee with Karan. I used to keep telling him about which girls on set had crushes on him. But he is shy when it comes to compliments. But all the more then I would make up stuff and tell him. But for the record, may I state that I did not place a camera in his vanity van, because people have been asking him and me, "To aapne kaise kiya?" And I'm like, you know, it was a joke. Yeah? Is that all? Thank you. Please watch Shaadi Ke Side Effects.